فرات احمد ستی صاحب سے اردو کے خوبصورت شاعر ہیں. آپ آئیں اور ہمارے جتنے بھی اس وقت کوئٹہ پریس میڈیا سینٹر کی سکرین سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو اپنی خوبصورت اور دل فریب شاعری سے ان کے دلوں کو محظوظ کریں. جناب احمد ستی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بہت شکریہ. میں کوئٹہ پریس میڈیا سینٹر کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ یہ محبتیں ہیں ان کی کہ ہمیں یہاں موقع فراہم کیا جاتا ہے. تو میں اثر حسین کیانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ وہ ہمیں یہاں پہ بہت پیار کے ساتھ بلاتے ہیں. تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں 2 شعر پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر میں اپنی شاعری اپنی غزل سناؤں گا. میرے آقا کی آنکھوں کے میرے آقا کی آنکھوں کے میرے آقا کی آنکھوں کے یہ تارے ہیں. میرے آقا کی آنکھوں کے یہ تارے ہیں. علی عمر عثمان علی عمر عثمان ابو بکر سب پیارے ہیں. علی عمر عثمان علی عمر عثمان ابو بکر سب پیارے ہیں. علی عمر عثمان ابو بکر سب پیارے ہیں. اور شعر دیکھیے کہ اپنے تو اپنے ہیں اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی بول اٹھے. اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی بول اٹھے. ہماری آنکھوں کے تارے ہیں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں. میرے آقا کی آنکھوں کے یہ تارے ہیں. علی عمر عثمان ابو بکر سب پیارے ہیں. علی عمر عثمان. جزاک اللہ. اور میں اب احمد ستی صاحب نے جو بڑے ترنم کمال شان صحابہ اور شان صحابہ اور شان اہل بیت کے متعلق جو اشعار پڑھے ہیں، یقیناً کل کا جو واقعات 2 دن پہلے ہوا ہے اور اسلام آباد میں واقعات ہوا ہے، ہمارے صحابہ کرام کی گستاخی کی گئی ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. پریس کلب کوئٹہ پریس میڈیا سینٹر اور پورے ہر مسلمان سراپا احتجاج ہے. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اعلی تحصیل کوئٹہ کے تمام علماء کرام کو کہ جو اس موقع پہ انہوں نے بڑی زبردست ایک مسائل قائم کیا ہے اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. اس میں تاجر برادری بھی شامل ہے، سماجی شخصیات شامل ہیں، سیاسی شخصیات شامل ہیں، صحافی برادری شامل ہے. ہم سب نے مل کر نہ صرف اس کوئٹہ شہر کے امن و امان کو برقرار رکھا، اس میں کوئی خلل نہیں ڈالنے دیا، بلکہ اس ملعون کے خلاف جو ایف آئی آر جو ہے وہ بھی ہو گئی ہے. اس موقع پہ میں جناب ہماری جتنی بھی انتظامیہ اور خصوصاً ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او صاحب کوئٹہ جنہوں نے بڑے احسن انداز سے اور بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف اس کی ویڈیو جاری کروا کر اقبال جرم کرایا بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے. ہم پریس کلب کوئٹہ اور کوئٹہ پریس میڈیا سینٹر کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بے شک. بالکل. یہاں پہ میں ایک اور بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام اہل بیت اور جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام ہیں وہ ہر مسلمان کے ایمان کا
हिस्सा हिस्सा हैं। हैं, बेशक। उनकी जो नामूस या उनकी गुस्ताही कोई भी अहल ईमान और कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बेशक। एक दफ़ा फिर मैं कोटा प्रेस मीडिया सेंटर के प्लेटफार्म और प्रेस क्लब कोटा की जानब से जितने भी हमारे उलमा कराम एक बड़ी एक पता है इंतशार वाली एक वो नौजवान जो जी थे सर, वो आपको पता है, और उलमा कराम ने एक यहाँ पे एक बहुत एक अच्छा जो है रोल प्ले किया, और तमाम उलमा कराम मुक्तबा फ़िक्र के जितने भी थे वो सारे एक प्लेटफार्म में इकट्ठे हुए, और वो सब कोटा प्रेस मीडिया सेंटर और प्रेस क्लब कोटा उनको खराज तहसीन पेश करता। और जैसे भी कियानी साहब ने कहा DSP कोटा और हमारी जो कोटा की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी उन्होंने भी एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया। जनाब अहमद सत्ती साहब, ये बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को शुक्रिया। अब मैं चूँकि यहाँ नौजवान मौजूद हैं तो मैं उनके लिए एक गज़ल पेश करने के नाज़रीन भी काफ़ी तादाद में नौजवान नाज़रीन के लिए भी मैं गज़ल पेश करने की कोशिश जसारत करता हूँ, और मैं सर से इजाज़त के साथ और अमीन से फिर सुनिएगा कि जुल्फ कोई लहराई, जुल्फ कोई लहराई हमें लगा कि तुम हो, जुल्फ कोई लहराई हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। धीरे धीरे सबा आई, धीरे धीरे सबा आई हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। और शेर देखिए कि बार बार छेड़ता था, बार बार छेड़ता था श्याम भाई, बार बार छेड़ता था एक बंवरा फूल को, बार बार छेड़ता था एक बंवरा फूल को। गुफ्तगू फूल ने फरमाई, गुफ्तगू फूल ने फरमाई हमें लगा कि तुम हो, क्या कहने, हमें लगा कि तुम हो। और शेर देखिए कि हम जुल्फे ख्याल यार में गुम थे, अमीन भाई, हम जुल्फे ख्याल यार में गुम थे। अचानक घटा छाई, अचानक घटा छाई हमें लगा कि तुम हो, क्या कहने भाई, बहुत हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। और देखिए कि गुलशन था फूल थी, फूल था, एक नक्शा खींचने की कोशिश कर रहा हूं अमीन भाई। गुलशन था फूल था, एक कली भी थी, गुलशन था फूल था, एक कली भी थी। फिर कली शर्माई, फिर कली शर्माई हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। और शेर देखिए कि मैंने छुआ उसे, मैंने छुआ उसे और तू याद आया, और तू याद आया। छुई मुई मुरझाई, छुई मुई मुरझाई हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए कि दिल तुझे ढूंढने, दिल तुझे ढूंढने को काफ तक गया, दिल तुझे ढूंढने को काफ तक गया। अटखेलियां करती, और नजारा देखिए कि दिल तुझे ढूंढने को काफ तक गया, को काफ तक गया। और अटखेलियां करती, अटखेलियां करती परी आई हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। और शेर देखिए कि
वीराने में तेरे लहजे की खनक साथ थी, वीराने में तेरे लहजे की खनक साथ थी। गजल कोयल ने सुनाई, गजल कोयल ने सुनाई, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। वाह वाह, क्या कहने, बहुत गजल, बहुत शुक्रिया। गजल कोयल ने सुनाई, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। और शेर देखिए कि हुस्न यार का चमन, हुस्न यार का चमन, वो अपनापन याद आया। हुस्न यार का चमन, वो अपनापन याद आया। कोई तितली रूबरू आई, क्या कहने, बहुत कोई तितली रूबरू आई, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। और शेर देखिए कि उजड़े दिल का करार तुम, उजड़े दिल का करार तुम, मेरे सारे इशार तुम, उजड़े दिल का करार तुम, मेरे सारे इशार तुम। गजल मद ने सुनाई, गजल मद ने सुनाई, हमें लगा कि तुम हो, तुम हो, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। बहुत यार आपका क्या खूबसूरत रदीफ है, क्या बात है, वाह वाह रदीफ, क्या बात। जी अहमद सत्ती साहब के पास दोबारा आएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं असगर हुसैन कैन साहब यहाँ पे हमारे नाजरीन जो यहाँ पे उनकी जो फरमाइशों का सिलसिला भी आना शुरू हो गया, और बहुत ही माशाल्लाह जिस तरह अहमद सत्ती साहब हमारे नाजरीन को खूबसूरत शायरी से उनके दिलों को महसूस कर रहे थे, उसी तरह फीडबैक भी आ रहा है। मैं नाजरीन का फीडबैक साथ लिए चलूँगा। रिजवान हफीज़ जंजू हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और कह रहे हैं माशाल्लाह कियानी साहब अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने कमेंट के साथ साथ हमारे खूबसूरत प्रोग्राम को शेयर भी करें। शकील अहमद साहब जो मलेशिया से हमारे परमानेंट व्यूवर हैं, हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, वो प्रोग्राम को शकील साहब तो ऐसे शेर सुनकर जरूर खुश बिल्कुल, होंगे। वो कियानी साहब उनका फीडबैक वो परदेश दिल में और जो है। फूल भेज रहे हैं। अहमद सत्ती साहब को कह रहे हैं माशाल्लाह बेहतरीन, आज आपने दिल खुश कर दिया, बहुत खूब। हुरम शेख इस वक्त हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया और प्रोग्राम देख रहे हैं। शकील अहमद कह रहे हैं माशाल्लाह कोहटा प्रेस मीडिया सेंटर ने कोहटा की सहाफ़त में नई रूपों की माशरे की इस्लाह के हवाले से बेमिसाल कारकर्दगी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। रिजवान हफीज़ जंजुआ वो भी उन्होंने बेशुमार दिल, फूल और मोहब्बत का इज़हार अहमद सत्ती साहब से किया, और ये भी कह रहे हैं कि रिजवान हफीज़ जंजुआ कोहटा प्रेस मीडिया सेंटर इस वक्त तहसील कोहटा का सबसे खूबसूरत सोशल मीडिया पेज है। माशाल्लाह जी, आपका इसी तरह फीडबैक आता रहना चाहिए। कमर हुसैन भी अहमद सत्ती साहब की शायरी से वो महजूज़ हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माशाल्लाह आज आपने हमारा दिल खुश कर दिया। जितने भी नाजरीन हैं हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इतनी खूबसूरत प्रोग्रामों को ये देखें। आप कोहटा प्रेस मीडिया सेंटर इतनी मेहनत से ये आपके साथ कोहटा का, तहसील कोहटा का जो टैलेंट आप तक सामने लाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, कोहटा प्रेस मीडिया सेंटर की आवाज़ बन सकते हैं। कोहटा की तमीर व तरक्की और कोहटा के जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए आप भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सिर्फ आप हमारे जितने भी खूबसूरत प्रोग्राम हैं कोहटा प्रेस मीडिया सेंटर की, उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी अप्रिसिएशन कीजिए। एहतिशाम आजकल स्कूल बंद है कोरोना की वजह से, तो बच्चे जो है वो दुआएं करते हैं कि अभी और बंद रहे। ये हमारे पास टीचर मौजूद हैं, हाँ कैन साहब बिल्कुल अंजम साहब मौजूद हैं, यकीनन हम उनके बच्चों के लिए भी ये आशार लाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल कैन साहब, ये लास्ट टाइम भी आए थे कोई अगर क्या हुआ वो स्कूल नहीं आए हैं बच्चे, तो ये यहाँ से होकर उनसे मुखातिब होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अब कैनी साहब मैं राजा मसूद अंजम साहब का एक कि पुठवारी का शेर लिखा हुआ, कोशिश करूँगा कि मैं उसे अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। वही शेर पढ़ के मैं इनको इनवाइट करूँगा। अंजम उन्होंने मुर्दा कौन आखे, अंजम उन्होंने मुर्दा कौन आखे, जिन्हें कितियाँ नेक कमाइयाँ होवन। जनाब राजा मसूद अंजम साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुठवारी के चंद अशार जो स्पेशली
कोटा प्रेस मीडिया सेंटर के हमारे जो प्रदेश में भाई हैं वो हमारा हर प्रोग्राम बहुत देखते रहते हैं शौक़ से और हमारी अप्रिसिएशन भी करते हैं, उनकी नज़र करें। और जैसा असगर हुसैन कियानी साहब ने आपसे गुजारिश की कि स्कूल बंद है कोरोना की वजह बच्चों को भी राज़ी करना है, बच्चों को भी आपने राज़ी करना है। तो जनाब राजा मसूद अंजम साहब। जी सर, बच्चों की भी राज़ी कर सा थोड़ा जहा मजाजा ना रंग अहमद सफीरा पढ़िया शेयर करना चाहना ते खास कर परदेस विच माड़े परदेसियां ना दिल खुश कीता ने समझो सारे ना कीता दिल भी ते लाजमी खुश करना होना ते शेर अर्जा जी के जदू तक जान विच जान मेरी जदू तक जान विच जान मेरी व तैनू दिलों वसारा ते मैं मुजरम जदू तक जान विच जान मेरी व तैनू दिलों वसारा ते मैं मुजरम तेरी याद तू गाफल मैं रह कलिया एक पल गुजारा ते मैं मुजरम किसे गैर दा नाम जबान उतों जेकर यार पुकारा ते मैं मुजरम अंजम तेरी उडीक विच कसम रब दी हिम्मत जरा भी यारां ते मैं मुजरम सजना तेरे बगैर हुण जीण मुश्किल सजना तेरे बगैर हुण जीण मुश्किल ना ये दुख इजरान हुण सहण आंदा अंदरों अंदर ही गमां ने साड़ सुटिया सरे आम नहीं लोकां नूं कहण आंदा काश हालत दीवानी ते तरस खावें चलण फिरण नहीं उठण बहण आंदा सच पुछे हुण अंजम मसूद कोलों ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਡੇਰੇ ਉਸ ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਡੇਰੇ ਵਾ ਜਿਸ ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲ ਸਨ ਮਹਿਕਦੇ ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਇਰ ਸਨ ਚਹਿਕਦੇ ਰੇ ਉਸ ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਡੇਰੇ ਵਾ ਜਿਸ ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਨ ਮਹਿਕਦੇ ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਇਰ ਸਨ ਚਹਿਕਦੇ ਰੇ ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਰਕੀਬਾਂ ਲਈ ਆਣ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਰਕੀਬਾਂ ਲਈ ਆਣ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਨ ਬਹਿਕਦੇ ਰੇ ਅੰਜਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਰਾਂ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਸਹਿਕਦੇ ਰੇ ਸਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਨਾ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੀ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਰਮਿੰਗਮ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਉਥੋਂ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਪਠਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਿਆ ਆਖਣੀ ਜੀ ਆਖਣੀ ਚੱਲ ਜਾਗਤਾ ਸਕੂਲੇ ਦਰ ਗੋ ਬੇਲਾ ਚੱਲ ਜਾਗਤਾ ਸਕੂਲੇ ਦਰ ਗੋ ਬੇਲਾ ਬਸਤਾ ਚਾਈ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਕਰ ਹਾਂ ਦਫਾ ਉਹ ਨਾ ਮਗਜ਼ ਖਪਾ ਮਾੜਾ ਕਦੂ ਗੋਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਉਸੇ ਕਦੂ ਗੋਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਉਸੇ ਕਦੂ ਸਿਰੇ ਤੂੰ ਲੈਸੀਏ ਗਾ ਮਾੜਾ ਪਨਸਾਂ ਅਡੀਆਂ ਤਵਾੜੀਆਂ ਮਸੂਦ ਅੰਜਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਲਗੀ ਗਿਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚਾਕਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਸ਼ਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹ ਪੀ ਕਿ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗੈਸਾਂ ਉੱਠੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕਿ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗੈਸਾਂ ਉੱਠੀ ਖਾ ਮਖਾਈ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਣੇ ਉਪੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਮਾੜੀ ਮਗਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਣੇ ਉਪੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਏ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਗੱਲੂ ਬਣਾਣੇ ਉਪੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਘਣੀ ਕੀਆਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਡਾ ਚੜਾਣੇ ਉਪੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਘਣੀ ਕੀਆਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਡਾ ਚੜਾਣੇ ਉਪੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਸਨੀ ਖਾਤਰੀ ਮਿੱਕੀ ਦਬਾਣੇ ਉਪੇ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਮਿੱਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਨੀ ਕੀਆਂ ਅਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪਨਾਣੇ ਉਪੇ ਉਧਰੋਂ ਮਲੂ ਮੁਸੀਬਤ ਹਿਸਾਬ ਔਰ ਵੀ ਮੈਥ ਉਧਰੋਂ ਮਲੂ ਮੁਸੀਬਤ ਹਿਸਾਬ ਔਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਭੇਜੀ ਸਕੂਲ ਸਤਾਣੇ ਉਪੇ ਉਧਰੋਂ ਤੰਗ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਥੀ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕੀ ਖਾਣੇ ਉਪੇ ਨੱਸੀ ਗੈਸਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੂਦ ਅੰਜਾਮ ਜ਼ੋਰੇ ਅਫਸਰ ਜੇ ਮਿੱਕੀ ਬਣਾਣੇ ਉਪੇ ਨੱਸੀ ਗੈਸਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੂਦ ਅੰਜਾਮ ਜ਼ੋਰੇ ਅਫਸਰ ਜੇ ਮਿੱਕੀ ਬਣਾਣੇ ਉਪੇ ਅਪਰੋਂ ਪਿਓ ਆ ਗਸ਼ਨਾ ਆਣਾ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਇਸਨੀਆਂ ਛੋੜ ਗੱਲਾਂ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਇਸਨੀਆਂ ਛੋੜ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਮੈਂ ਆਪੋ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਤੰਗਾ ਬਹੁ ਜਿਸਲੇ ਪੁੱਜੋ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸਾਡੇ ਵਸ ਪਈ ਬਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਾਣੀ ਰਹਿਣੀ
ਆਪੋ ਮੂੰਹ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆਸ ਮਤ ਦੁਆਂ ਕੀ ਪੜਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆਹੀ ਨਾ ਪਰਾਠੇ ਸਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਕੰਨ ਇਸਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਨਾ ਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੱਤੀ ਤਪਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਕਰਸਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸੂਦ ਅੰਜਾਮ ਛੋੜ ਸੈਵੇਂ ਇਹ ਰਫੜੀਆਂ ਛੜਕਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨਾ ਆਹਣਾ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਬੇਈਗਾ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਬੇਈਗਾ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਰਿੰਜਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸੜਸਾਂ ਦੇਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਲਵਾਈ ਸੜਸਾਂ ਜੇ ਕਰ ਸੜਨੀ ਤੇ ਸੜੇ ਸੜਿਆ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਖਸੇ ਉਥੋਂ ਬਿਆਈ ਸੜਸਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਦੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਤੱਕੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂੜਾਂ ਤਮਾਈ ਸੜਸਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਜੇ ਸ਼ਮਲਾਤ ਤੇ ਵੇਚਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਟੰਟਾਂ ਅਸਾਂ ਮਕਾਈ ਸੜਸਾਂ ਕਰਾਸਾਂ ਮੁਜਰਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮਸੂਦ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਟੌਰ ਬਣਾਈ ਸੜਸਾਂ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਲੀ ਤੇ ਪੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਜੀ, ਜੀ। ਮਕਾਨ ਜਾਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਆਖਰੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ महसूस करसां ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ परदेसी भाई बड़ी इधर फरमाइश करने पे तुसों पटवारी शेर सुनाए तो माड़ा भी दिल किया थोड़ा पटवारी से राजा मसूद अंजम साहब शायरी की थी परदेस जेड़े साढ़े भरा तकने पे उन्होंने नज़र से पटवारी कोई चंद शेर वो अक्सर फरमाइशा करने रहने जी, जी। ते आज मौका आखने ना फिर मैं आसा ये फिर पर्सन ना हाँ मौका चलें देख अब लेना है इस वक्त मैं नाज़रीन का जो फीडबैक है वो भी साथ लिए चलता हूँ गालिब हुसैन माशाल्लाह जी माशाल्लाह अबू ज़ैबी से बहुत खूब जनाब आप हमारे इस प्रोग्राम को कमेंट के साथ साथ प्रोग्राम को शेयर भी करें कमर हुसैन कह रहे हैं वाह जी वाह मास्टर जी चास आ गई रिजवान हफीज़ जंजुआ अरसलान कियानी साहब सो नाइस एंड ब्यूटीफुल प्रोग्राम बाय यू मे अल्लाह ब्लेस यू एंड गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस आमीन जज़ाकल्लाह जनाब थैंक यू सो मच आपकी यही अप्रिसिएशन का जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए रिजवान हफीज़ जंजुआ साहब मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम शुरू से देख रहे हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें चौधरी गलतियां भी कटिया करो और चौधरी उमैर गुज्जर साहब हमारा प्रोग्राम देखें वाह वाह जी राजा मसूद अंजम साहब जी छा गए हो जी राजा अब्दुल वहाब साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और प्रोग्राम की तारीफ फरमा रहे हैं रिजवान हफीज़ जंजुआ राजा मसूद अंजम ग्रेट पर्सनैलिटी नो डाउट खुश आया सी ना आया सी बच्चे जरूर खुश बच्चे बिल्कुल कहें साहब मास्टर फीडबैक भी आ रहा है राजा एहसन वेद कह रहे हैं वाह जी वाह बहुत खूब चौधरी उमैर गुज्जर क्या बात है आपकी शायरी की राजा साहब अल्लाह आपको सलामत रखे कमर हुसैन देख रहे हैं हाफिज़ इसरार अहमद माशाल्लाह ग्रेट बहुत खूबसूरत प्रोग्राम कोहटा प्रेस मीडिया सेंटर की इस खूबसूरत कावश को खराज तहसीन पेश करवा हाफिज़ इसरार साहब तुसा कि असा लोड़ने आउण जड़ा ना लोड़ी किंदा संगे हुन संगे इत्थे बुलाया करसा बिल्कुल इंशाल्लाह कहन साहब माजिद अली हाशमी बेहतरीन शेर लिखाड़ी की है राजा मसूद अंजम साहब ने आपकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं चौधरी उमैर गुज्जर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और प्रोग्राम को बेहद फरमा रहे हैं बाबर सलीम अहमद सत्ती साहब हमारे हीरो हमारा फ़ख्र कोहटा के अजीम शहर अहमद सत्ती साहब को सलाम राजा हसनैन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं प्रोग्राम की बेहद तारीफ़ फरमा रहे हैं उस्मान रशीद प्रोग्राम देख रहे हैं प्रोग्राम की बेहद तारीफ़ फरमा रहे हैं उस्मान गुज्जर और राजा हसनैन ये जितने भी इस वक्त नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं फीडबैक दे रहे हैं आप सब नाज़रीन से फ़र्दन व फ़र्दन में एक एक बंदे का नाम नहीं ले सकता लेकिन फिर आपसे प्रोग्राम शुरू हुआ तो वही मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी अब यही रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अब हम यहाँ पे खूबसूरत शहर जो चिच्चा वतनी से जिनका तल्लक है अमीन सफ़ीर साहब उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे नाजरीन इस वक्त माशाल्लाह बहुत से लोग हमारा साहब जो हमारे बाहर सफीर हैं बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं वो हमारे सफीर हैं बिल्कुल अमीन सफीर साहब अपना पैगाम अपना पैगाम भी दें और वो आपकी जो खूबसूरत है आपकी जो मैं ये चाहूँगा कि अभी टाइम भी हमारे पास थोड़ा है तो आप थोड़ा नहीं है जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़े हाँ जितना आपकी जो मोस्ट फेवरेट या जो आपकी सबसे पसंदीदा मैंने ये कलाम इससे कबल नहीं पढ़ा वो कलाम मैं आपको सुनाता हूँ अक्सर आजकल तो हर बंदा इसी का मरीज़ है कि सोचों के जजीरों पे ठहरा हुआ दिल क्या बात है क्या बात है क्या बात है सोचों के जजीरों पे ठहरा हुआ दिल है कागज़ के टुकड़ों पे लिखा हुआ दिल क्या बात है क्या बात सोचों के जजीरों पे ठहरा हुआ दिल है कागज़ के टुकड़ों पे लिखा हुआ दिल आता है ख्यालों में चेहरा वो हंसी आता है ख्यालों में चेहरा वो हंसी सांसों की रवानी पे बहता हुआ दिल क्या कहने अमीन भाई बहुत आता है ख्यालों में चेहरा वो हंसी
सांसों की रवानी पे बहता हुआ दिल, क्या कहने हैं? अपनी ही किसी बात पे हंसता रहा मैं, अपनी ही किसी बात पे हंसता रहा मैं, अपनी ही किसी बात पे रोता हुआ दिल, वाह वाह, क्या कहने हैं? अपनी ही किसी बात पे हंसता रहा मैं, अपनी ही किसी बात पे रोता हुआ दिल। लफ्जों में चले आओ शाहकार की सूरत, लफ्जों में चले आओ शाहकार की सूरत, बिन तेरे अधूरा है ये कहता हुआ दिल। क्या कहने हैं? बहुत अपनों ही की चोटों से जख्मी हुआ जख्मी, अपनों ही की चोटों से जख्मी हुआ जख्मी, चुप करता ही नहीं मेरा रोता हुआ दिल। क्या कहने सर, बहुत खूब। अपनों ही की चोटों से जख्मी हुआ जख्मी, चुप करता ही नहीं मेरा रोता हुआ दिल। आ हुस्न की देवी तुझे सीने से लगा लूं, क्या कहने आ हुस्न की देवी तुझे सीने से लगा लूं, सावन की तरह वस्ल पे बरसा हुआ दिल। क्या कहने सर, बहुत खूब, बहुत खूब। आ हुस्न की देवी तुझे सीने से लगा लूं, सावन की तरह वस्ल पे बरसा हुआ दिल। होता ही नहीं दूर आंखों से वो मंजर, होता ही नहीं दूर आंखों से वो मंजर, देखा था किसी हाथ से गिरता हुआ दिल। होता ही नहीं आंख से दूर, होता ही नहीं दूर आंखों से वो मंजर, देखा था किसी हाथ से गिरता हुआ दिल। फिर डरता हूँ बसाने से दिल को किसी दिल में, फिर डरता हूँ बसाने से दिल को किसी दिल में, समेटूंगा मैं कैसे ये बिखरा हुआ दिल। समेटूंगा मैं कैसे ये बिखरा हुआ दिल। सोचूं के जजीरों पे ठहरा हुआ दिल। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। यकीनन इस वक्त जितने भी बहुत हमारे शुक्रिया। नाज़रीन थे उन खूबसूरत अमीन सफ़ीर की खूबसूरत शायरी से यकीनन वो महसूस हुए होंगे। साथ साथ मैं अपने नाज़रीन का फ़ीडबैक भी लिए चलूँगा। इस वक्त उस्मान रशीद हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ़ फरमा रहे हैं। उस्मान गुज्जर, राजा हसनैन, जहाँ तक मुझे याद रहता है कि हमारे मेरे क्लास फेलो थे, इरम स्कूल में हम एक साथ पढ़ते थे। बहुत प्यारा प्रोग्राम भाईजान जी, बिल्कुल आपकी हौसला अफजाइयों का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का आप कमेंट भी कर रहे हैं भाई, तो मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा प्रोग्राम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। राजा एहसन वहीद कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम को होता प्रेस मीडिया सेंटर बेशक खराज तहसीन के मुस्तहिक है इतना खूबसूरत प्रोग्राम पेश करने पर। बाबर सलीम अहमद भाई अगली दफ़ा पूरा पागल किताब लिख दें इंशाल्लाह। ये आपके जो चाहने वाले हैं वो बाबर आपसे सलीम ये पागल बाबर होकर सलीम यहाँ हमारे स्टूडियो में मिलकर क्या पहुंच था, चुके वो पागल होकर यहाँ पे ये प्रोग्राम लाइव देख रहे थे, वो यहाँ पे आगे आमिर फ़ारूक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम को बेहद पसंद फरमा रहे हैं। कमर हुसैन, ये मसलसल इनके कमेंट्स आ रहे हैं और कमर हुसैन से मेरी रिक्वेस्ट है हमारे प्रोग्राम को आप साथ साथ शेयर भी करें। राजा मुजम्मल ने भी प्रोग्राम को वॉच करना शुरू किया। राजा मुजम्मल कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कावश और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का होता प्रेस मीडिया सेंटर का। चौधरी उमैर गुजर बहुत खूबसूरत। जनाब अब हम अहमद सत्ती की जानब चलूँगा। और जैसे बाबर सलीम ने कहा कि आपकी एक किताब जो थी आधा पागल थी, तो आप जब लास्ट टाइम भी आए थे तो बड़े माशाल्लाह अहमद खूबसूरत सब्ती शायरी। साहब से मैं कहूँगा कि आप नौजवान हैं और नौजवानों की भी शायरी करते हैं, तो बूढ़ों के लिए भी कुछ शायरी करें। बिल्कुल ये क्या नहीं साहब, इंशाल्लाह सर ये भी कोशिश करेंगे। और मैं बाबर सलीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत मोहब्बत दी। और अब मैं ये गज़ल आपके सामने पेश करूँगा कि गज़ल कुछ यूँ है कि गली में बच्चों से मेरा नाम पूछते हो, गली से बच्चों से मेरा नाम। एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है, आपके ख्यालों में भी बहुत कुछ आएगा कि गली में बच्चों से मेरा नाम पूछते हो, खैर है ना। गली में बच्चों से मेरा नाम पूछते हो, खैर है ना। और मुझे यूं लगता है तुम मेरे बारे सोचते हो, वाह वाह क्या कह रहे हैं। खैर है ना। बहुत खूब। और मुझे यूं लगता है तुम मेरे बारे सोचते हो, खैर है ना। और शेर देखिए कि उफ इतने शेर, इतनी गज़लें, इतनी नज़में, ज़ुबानी याद। हाय 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 क्या उफ इतने शेर, इतनी गज़लें, इतनी नज़में, ज़बानी याद। तुम शायर हो, आशिक हो या पागल,
कितना बोलते हो खैर है ना, वाह वाह, क्या कहने हैं। कितना बोलते हो खैर है ना, और गली में बच्चों से मेरा नाम पूछते हो खैर है ना। और शेर देखिए कि ज्यादा गौर नहीं कीजिएगा, बस सुन लीजिएगा। मैं खिलौना हूं, मैं खिलौना हूं, न तुम अब बच्चे हो साहब, मैं खिलौना हूं न तुम अब बच्चे हो साहब, पागल हो क्या इतना क्यों मचलते हो, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं अहमद भाई। पागल हो क्या इतना क्यों मचलते हो खैर है ना। जी जरूर, हुक्म है आपका कि मैं खिलौना हूं, मैं खिलौना हूं न तुम अब बच्चे हो साहब, पागल हो क्या इतना क्यों मचलते हो खैर है ना, इतना क्यों मचलते हो खैर है ना। और शेर देखिए कि इस इश्क से बचो बाबर सलीम, इस इश्क से बचो, इश्क पागल कर देता है दोस्त, इस इश्क से बचो, इश्क पागल कर देता है दोस्त। सुना है दरख्तों पर मेरा नाम लिखते हो बहुत खूब। खैर है ना, सुना है दरख्तों पर मेरा नाम लिखते हो खैर है ना। और शेर देखिए अमीन भाई, शेर देखिए कि कभी शिकवा कभी प्यार, कभी गुस्सा कभी मोहब्बत, कभी शिकवा कभी प्यार, कभी गुस्सा कभी मोहब्बत, तुम एक पल में कितने रंग बदलते हो, तुम एक पल में कितने रंग बदलते हो खैर है ना, तुम एक पल में कितने रंग बदलते हो खैर है ना। और शेर देखिए कि तुम्हारी बात के पीछे, यार पागल हूं पर आधा पागल हूं, पूरा पागल नहीं हूं, देखना शेर कैसे लिखा। तुम्हारी बात के पीछे जो बात है समझते हैं यार, तुम्हारी बात के पीछे जो बात है समझते हैं यार, तुम मुझे इतना क्यों नादान समझते वाह वाह, हो, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। मोहब्बत, तुम मुझे इतना क्यों नादान समझते हो खैर है ना, खैर है ना। और शेर देखिए कि पहले भी तुम मुझे देखते थे मगर अहमद, पहले भी तुम मुझे देखते थे मगर अहमद, अब तुम मुझे इतने गौर से क्यों देखते हो, अब तुम मुझे इतने गौर से क्यों देखते हो खैर है ना। और गली में खेलते बच्चों से मेरा नाम पूछते हो खैर है ना। मुझे यूं लगता है तुम मेरे बारे सोचते हो खैर है ना, खैर है ना। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। अहमद साहब की आदि शायरी देखकर ये आप तो आधे पागल हो रहे हैं, लेकिन आपकी जिस अंदाज में और जिस मोहब्बत के साथ आप शायरी पेश कर रहे थे, मुझे यकीन है कि आप यकीनन बहुत जल्द पूरे पागल भी हो जाएंगे। और बहुत जल्द जो अभी बाबर सलीम भी कह रहे थे पूरा पागल इंशाल्लाह किताब भी लिखेंगे। शाम भाई एक वाकया याद आ गया आधा पागल और पूरा पागल से, कि एक दफ़ा मुशायरे में थे तो वहाँ जलील अली साहब भी, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, वो स्टेज पे बैठे हुए थे। मैंने गज़ल पढ़ी कि आधा पागल कर डाला है आधा पागल कर डालोगी, जिद से अपनी जिद्दी लड़की पूरा पागल कर डालोगी। और पीछे से एक आवाज़ आई इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मैंने कहा सर बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। यकीनन हमारे नाजरीन के दिल अहमद सत्ती साहब की खूबसूरत शायरी से वो महसूस हो रहे हैं। उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। आमिर फ़ारूक प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम को बेहद पसंद फरमा रहे हैं। कमर हुसैन, राजा मुजम्मल और चौधरी उमैर गुजर बहुत खूबसूरत शायरी। खुर्शीद आलम प्रोग्राम वाच कर रहे हैं। उस्मान गुज्जर भाई आप भी कोई पोइट्री सुना दें इंशाल्लाह जी नेक्स्ट प्रोग्राम में। मैं तो शायर नहीं हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी फरमाइश को देखते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट के किसी प्रोग्राम में अहमद सत्ती साहब की शागिर्दी में आज, हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं कियानी साहब। एहतशाम ज़ैद हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और अहमद सत्ती की शायरी से वो महसूस भी हो रहे हैं। सरदार रफ़ी प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम को बेहद पसंद फरमा रहे हैं। चौधरी उमैर गुज्जर, अहमद सत्ती साहब क्या बात है आपकी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे माशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। सरदार रफ़ी कह रहे हैं बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। चौधरी उमैर गुज्जर भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और प्रोग्राम की तारीफ़ फरमा रहे हैं। अहमद सत्ती की शायरी को वो दाद दे रहे हैं। जितने भी इस वक्त हमारे नाज़रीन जो कमेंट्स में फ़ीडबैक दे रहे हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोटा प्रेस मीडिया सेंटर के इन खूबसूरत प्रोग्रामों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब मैं राजा मसूद अंजम की तरफ चलूँगा कि वो एक तो हमारे जो
परदेश में भाई हैं उनके लिए कोई शायरी और आप बड़े अरसे बाद लबे ना इसके अलावा बिल्कुल यही बात है। और आपकी जो पसंदीदा आपके जो पटवारी शायर हैं वो हमारे नाज़रीन की नज़र कर दें। वो माइक थोड़ा सा कर। क्लोज करना तुसन एक फरमाइश पूरी कर सां ते चूंकि मिकी भी अहमद रंग तकी जरा जोश चढ़ी गया तो परदेस ही एक अपना बड़ा प्यारा जो दोस्त आ उस एक फरमाइश की सी ते उसने पहले फरमाइश पूरी कर सां ते जिथे तक तुसां आख्या जी पसंदीदा शायर चूंकि असां पटवारी नाल तलक आ ज़ाहिर गल ही साढ़े ज़्यादातर पटवारी ने ते उस सिलसिले विच सैयद आले इमरान साहब ने जो कुछ दौर हिस्सों पढ़िया हुआ है वो जी जी उन्होंने याद चलो मैं वो भी याद ताज़ा करी सना मैं एक फरमाइश आई सी तो वो किसी ने नज़र करना पिया फिर और आप पढ़ लें, टाइम है अभी आप मैं तू ते मंगला डैम होवे क्या कहना है? मैं तू ते मंगला डैम होवे वो चलदा जाम ते जाम प्रेम होवे वो आवन फुल असीन किनारियां ते वो जेड़े करन छावर प्यारियां ते क्या कहने मसूद साहब बहुत मैं तू ते मंगला डैम होवे वो चलदा जाम ते जाम प्यार होवे आवन फुल असीन किनारियां ते वो जेड़े करन छावर प्यारियां ते उत्ते आप दी कश्ती रवान होवे वाह वाह बहुत खूब, बहुत खूब। छाया अबर ते मस्त नज़ारे आवन छाया अबर ते मस्त नज़ारे आवन सामने पादे ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਿਆਰੇ ਆਵਣ क्या तस्वीर कशी है ਛਾਇਆ ਅਬਰ ਤੇ ਮਸਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਵਣ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਿਆਰੇ ਆਵਣ ਗੱਲ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵਸਾਇਆ ਇੱਕ ਲੱਗ ਜਹਾਨ ਹੋਵੇ ਬਣੀ ਕਾਕਲ ਯਾਰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦਿਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅਸੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਗਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਖਮੂਰ ਕਰ ਜਾਏ ਕੁਝ ਹਵਾ ਮਸਤਾਨੀ ਸਰੂਰ ਕਰ ਜਾਏ ਆਵਾਂ ਮਸਤ ਮੈਂ ਮਸਤ ਜਾਨਾਨ ਹੋਵੇ ਨਿਗਾ ਅੰਦਰ ਰੰਗੀਨ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇ ਨਿਗਾ ਅੰਦਰ ਰੰਗੀਨ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ क्या बात है क्या बात ਨਿਗਾ ਅੰਦਰ ਰੰਗੀਨ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇ ਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਦਿਸੇ ਫਕਤ ਮਸਤੀ ਦੀ ਅਰਸੂ ਲਹਿਰ ਦਿਸੇ ਅੰਜਮ ਯਾਰ ਜੇ ਕਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ क्या कहना है? ਸਰ ਉਹਨੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸਨਿਆ ਜੀ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਮਲਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ बस ਲੋਕ ਛੋੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ क्या बात है क्या बात है ਉਹ ਦੌਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਯਾਰੋ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੇ ਅਦਬ ਆਦਾਬ ਨਾ ਰੇ ਨਿੱਕੇ ਬੜਿਆਂ ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਝਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ ਉਹ ਦੌਰ ਛਰਛੋਵੀਆਂ ਨਾ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੌਰ ਛਰਛੋਵੀਆਂ ਨਾ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਣਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਸੀਆਂ ਨਾ ਪੈ ਦੁਈਆਂ ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਸੀਆਂ ਨਾ ਪੈ ਦੁਈਆਂ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਹੁਣ ਪੀਣੇ ਪਲਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ क्या बात है क्या बात है वाह 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 सर वाह ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪਰਾਠੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਏ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪਰਾਠੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਏ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ क्या बात है ਖਤ ਪੱਤਰ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਆਣ ਮੁਕੀਆਂ ਖਤ ਪੱਤਰ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਆਣ ਮੁਕੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ SMS ਭਜਵਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ क्या बात है क्या बात है क्या कहना है ਐਸਾ ਦੌਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਐਸਾ ਦੌਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਈ ਚਲਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ ਉਕੇ ਚਲਮਾਨਾ ਦੌਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਕੇ ਚਲਮਾਨਾ ਦੌਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾ ਪੀਣੇ ਪਿਲਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ क्या बात बीवी खामद दी रही ताबेदार कोई नहीं बीवी खामद दी रही ताबेदार कोई नहीं परस बीवी दा खामद उठाने तक लो हुण दीनी तालीम भी घट होई गई हुण दीनी तालीम भी घट होई गई बच्चे इंग्लिश हुण बोलने बुलाने तक लो वाह सर उस्तादा कम स्कूले ना छोड़ दिता ये अपने पर से शेर आंदा है माजरत ना नहीं उस्तादा कम स्कूले ना छोड़ दिता बेई घरां विच ट्यूशन पढ़ाने तक लो ਸ਼ੇਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਘੜੇ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਘੜੇ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ क्या बात है क्या बात है क्या बात है सच्चियां गल्लां। इरशाद इरशाद एक दफा फिर पढ़ो ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਵੀ ਘੜੇ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ
ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਨਾ ਪੀਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਨਾ ਪੀਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਲਵਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ, ਇੱਟੀ ਟੱਲਾ ਤੇ ਕੋਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਈ, ਇੱਟੀ ਟੱਲਾ ਤੇ ਕੋਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਥੀ ਦਿਲ ਬਲਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਹੋਈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਰਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਨੇ ਮਸੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਨੇ ਮਸੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਸੀਤਾਂ ਸਜਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ, ਅੰਜਮ ਮਿਲਣੇ ਮਲਾਣੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਹੋਈ ਵਿਰਦ ਪਕਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। یہ تو بالکل عکاسی کری ہوئی ہے آج کل نے حالات ہیں اسی عکاسی کری ہوئی بہت خوب ہے۔ اب ہمارا جو پروگرام ہے وہ امین سفید صاحب کلام پڑھیں گے، اس کے بعد آخری کلام احمد ستی صاحب پڑھیں گے۔ میں ہاں یہ چاہتا ہوں کہ احمد ستی صاحب آخری کلام سے پہلے، جو آپ کو پتہ ہے کہ تحصیل کوہٹا میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت نوجوان شاعر